So, hello students, I Deepika Saraswat and I welcome you all in our next video and next lecture, which is our lecture number 1, lecture number 6, that's related with our unit number 1. So, students, that lecture is totally different from our previous lectures. And why so? Because our all previous lectures were totally discussed about the object oriented programming concepts, and with some practical approaches we have also discussed about the terms class and objects, and how we'll declare a class and object in our programs. So we have done all the basic tasks by using and by with the help of the practical approach. Now in this topic we'll discuss about some designing aspects, that whenever any developer is going to design a program, it's going to create a program, develop a program. So what are those things that will that should become in the developer minds? And because all these things are done by the developers, so because we all are user here, but according to the developer we should think about. So according to the developer point of view, we are going to discuss these lectures. Now firstly we'll move further, then we'll discuss what are those things. So firstly we'll start with the some prerequisites of the this topic. So prerequisites क्या हो सकती हैं अगर हम बात करें prerequisites की? That you should know about the knowledge of basic objects oriented concepts. उसके बारे में हम बात कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे टॉपिक का. Next we'll take some review of some previous lectures, and then we'll move to the foundation of the object model. What are these foundations? Next we'll take some look on the concepts, which is object oriented programming, designing and analysis. So we'll discuss on these, and there are number of topics that we'll discuss, that we'll consider in the terms object models in details. So there are number of topics that we'll discuss in that object models, and we'll talk about some learning outcomes with some references. So students, if we talk about some prerequisites, so it's maybe any knowledge about some objects, what can be the object attributes. Because जब भी हम object model की बात करेंगे, it means model, it means a kind of designing form. तो अगर हम कुछ डिज़ाइन करते हैं, it means we need a name of the class and we need a name of the object. और जब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, what can be the basic properties of that object and class also. इसका मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं. सो एट्रीब्यूट्स मे बी एनी काइंड्स ऑफ characteristics that will take parts with the class. So class entity के साथ जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं. तो जब भी कोई मॉडलिंग करेंगे तो हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स और ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होना कंपलसरी है, और कुछ बेसिक फीचर्स हम यहाँ पर फॉलो करेंगे. दैट्स व्हाई वी आर परफॉर्मिंग विद दिस मॉडलिंग, कि वो जो बेसिक फीचर्स हैं लाइक इनहेरिटेंस कहाँ परफॉर्म हो रहा है, इनकैप्सुलेशन है, डाटा हाइडिंग है, ये सारी चीज़ें कहाँ मेंटेन हो रही हैं, ये भी हमको इस ऑब्जेक्ट मॉडल्स में समझना है. तो वो बेसिक नॉलेज होना भी कंपलसरी है. Now if we talk about the objective of this video, so objective ये है कि अभी तक हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, बट अगर हम उसको डिज़ाइनिंग के फॉर्म में लेकर जाएं, बिकॉज जब भी कोई प्रोजेक्ट या कोई सॉफ्टवेयर रेडी किया जाता है, अभी तक तो जैसे आप सभी स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स पर काम करते हो, उसको क्रिएट करते हो, it's not more than 100 lines of code, but whenever codes are it's approx between 500 to 1000 lines of codes. तो उस लाइन्स ऑफ कोड को क्रिएट करने के लिए डेवलपर नीड्स टू डिवाइड द टास्क. वो उसको डिकम्पोज कर देता है डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूलरिटी में. तो उस टास्क को डिवाइड करके देन इट विल गो फॉर द कोडिंग पर्पस, देन इट मूव टू द कोडिंग. तो कोडिंग पर जाने से पहले कई सारे स्टेप्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं बाय द डेवलपर्स और द प्रोग्रामर्स.
सो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है एनालिसिस करना चीज़ों को, जो अभी हम इसमें समझेंगे। टू एनालिसिस ऑल दी प्रोग्राम्स, ऑल दी प्रोजेक्ट्स, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, व्हाट कैन बी द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स, तो उन सारी चीज़ों को हमको एनालिसिस करना है। देन अकॉर्डिंग टू एनालिसिस वी गोइंग टू द डिज़ाइन। उसके बाद हम एनालिसिस के पॉइंट्स पर डिज़ाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक एग्जांपल ले, लाइक आई वांट टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग क्रिएट करने जा रहे हैं, तो क्या सबसे पहले हम उस बिल्डिंग को बनाना शुरू कर देते हैं? नहीं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि उस बिल्डिंग के लिए जो अप्रोप्रिएट प्लेस है वो प्रॉपर है या नहीं, और उसको बनाने के लिए हमको किस किस इन्वायरमेंट की या किस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, किस मैप की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम उस मैप को क्रिएट करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एनालिसिस किया उस प्लेस को लेकर, देन हम डिजाइनिंग पर गए उस मैप को लेकर, उस मैप के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। सिमिलरली व्हेन वी मूव टू द कंप्यूटर साइंस ब्रांच, अब हम कंप्यूटर साइंस का एक एग्जांपल लेते हैं। जब भी स्टूडेंट्स किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दो चीज़ों पे ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट के इनपुट्स क्या रहेंगे एंड व्हाट आउटपुट्स वी नीड, किस आउटपुट के लिए वो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, बेसिक उसकी एप्लीकेशन क्या वो पता होना बहुत ज़रूरी है। और उस एप्लीकेशन के साथ साथ क्या इनपुट, रेलिवेंट इनपुट्स फ्रूटफुल हो सकते हैं, वो इनपुट देना बहुत जरूरी है। तो हमको क्या करना है, एक ऐसा एनालिसिस करना है जिसमें इनपुट्स भी है, उसके साथ साथ आउटपुट भी हो, और बेसिक जितनी भी रिक्वायरमेंट गैदरिंग्स है वो सारी चीज़ हमको पता होना चाहिए। तभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना काम शुरू करता है। तो पहला स्टेप हो गया एनालिसिस करेगा, उसके बाद जो भी टास्क करना है उस टास्क को वो डिजाइन करेगा। तो डिजाइन करने के लिए प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में डिवाइड करेगा, और मॉड्यूल्स में डिवाइड करके वो ये बताएगा कि उसमें कितनी नंबर ऑफ क्लासेस लगेंगी। तो वही पॉइंट्स मैंने सबसे पहले लिखा है कि सॉफ्टवेयर या किसी सिस्टम में सबसे पहले वो ये चेक करेगा कि ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है और क्लासेस क्या क्या है। और ये जितने भी नंबर ऑफ क्लासेस हम यूज करते हैं ये हमेशा तभी यूज होंगे व्हेन वी क्रिएट आवर प्रोग्राम इन अ फॉर्म ऑफ मॉड्यूल। जब मॉड्यूल डिजाइनिंग होगी तभी ये सारे टास्क परफॉर्म होंगे। तो मॉड्यूल कैसे मॉड्यूल बनाया जाए, किस तरीके से मॉड्यूल पे वर्क करना है, दीज ऑल थिंग्स एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट मॉडल। तो जो ऑब्जेक्ट मॉडल का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली हम ये सारा डायग्राम क्रिएट करते हैं। उसके बाद इस मॉडल से ये भी बेनिफिट होता है कि हमको कोई इंटरफेसिंग पता चलती है, और एक इंटरेक्शन रहता है कितनी नंबर ऑफ क्लासेस के बीच में कहाँ डेटा रीयूज हो रहा है, किस क्लास का क्या डेटा रीयूज हो रहा है, इनकैप्सुलेशन कहाँ हो रहा है, सबसे बड़ी बात डाटा एब्स्ट्रैक्शन कहाँ हो रहा है, ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जितने भी फीचर्स हैं वो हम इजीली समझ सकते हैं यहाँ पर। तो एक पूरा ये ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक को पढ़ने का। नाउ नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है। तो ऑब्जेक्ट मॉडल जैसे मैंने आपको बताया कि एक डिजाइनिंग फॉर्म है। एक ऑन पेपर अगर हम बात करें तो एक ऑन पेपर एक डिजाइन है जिसके लिए हमने एक डिजाइन बना लिया, सिंपल एक स्ट्रक्चर बना लिए कि मेरे पास ये क्लासेस हैं, हर क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट्स हैं। हम किसी भी फॉर्म में इसको डिजाइन कर सकते हैं, आइदर कोई एक रेक्टेंगल फॉर्म बना सकते हैं या आइदर कोई स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। बट हमारे पास सारा डेटा स्टेप बाय स्टेप फॉलो होना चाहिए। सबसे पहले हम कितने मॉड्यूल में काम करने जा रहे हैं और हर एक मॉड्यूल में कौन सी क्लास है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो अगर वो मॉड्यूल हमने एक सिस्टमेटिक मॉड्यूल लिखा है, जैसे कि हमने आज तक प्रोसीजरल ओरिएंटेड की बात की, और एल्गोरिदम बेस्ड अगर कोई मॉड्यूल है तो उसका नाम होता है स्ट्रक्चर डिजाइन मेथड। तब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर डिजाइन मेथड की। तो ये दो फाउंडेशन है हमारे ऑब्जेक्ट मॉडल के। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर डिजाइन मेथड, जो कब यूज हो रहा है, डेवलपर के थ्रू यूज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीजरल अप्रोच। और प्रोसीजरल अप्रोच कब लग रही है, व्हेन वी वर्क विद द एल्गोरिदम बेस्ड। एल्गोरिदम बेस्ड जितना भी टास्क है वो स्ट्रक्चर डिजाइन मेथड कहलाती है। नाउ सेकेंडली दूसरा टास्क ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग पे अगर हम बात करें, डेवलपर क्या देख रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट इन क्लास। तो जो भी टास्क ऑब्जेक्ट और क्लास के थ्रू यूज होता है उस फाउंडेशन को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन मेथड बोलते हैं। तो यहाँ दो बातें क्लियर हो गई स्टूडेंट्स, पहली मेथड स्ट्रक्चर डिजाइन मेथड, दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन मेथड। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको ये तीन चीजें बहुत अच्छे से समझनी होंगी ऑब्जेक्ट मॉडल जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन आपसे कभी भी पूछी जा सकती हैं, आपके इंटरनल वाइवास में पूछी जा सकती हैं, या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपने इतना बड़ा सब्जेक्ट पढ़ लिया बट आपको यही नहीं पता चला कि उस सब्जेक्ट में एनालिसिस पॉइंट क्या था, डिजाइनिंग क्यों हो रही थी और प्रोग्रामिंग क्यों हो रही थी। क्योंकि डायरेक्ट प्रोग्रामिंग कभी नहीं होती है, प्रोग्रामिंग के पहले दो स्टेप होते हैं, एनालिसिस और डिजाइनिंग। तो इनको आज हम पढ़ लेते हैं, ये पढ़ना बहुत जरूरी है।
तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कई बार हम इस टर्म्स को समझ चुके हैं और पढ़ चुके हैं कि एक सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन है जिसके थ्रू पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है और जिसमें सिर्फ एक ही लैंग्वेज यूज की जा रही है, ऑब्जेक्ट और क्लास। बस हमको ये दो चीजें याद रखनी है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास। नाउ नेक्स्ट, इसी से रेलिवेंट एक टर्म आई है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग। तो ये जो ऑब्जेक्ट और क्लास जो हमने क्रिएट किया था ना प्रोग्राम के फॉर्म में, उससे पहले इसकी डिजाइनिंग की गई थी कि भाई कौन कितने मॉड्यूल यूज होंगे और हर मॉड्यूल के पास कौन कौन सी क्लास है और हर क्लास के अंदर किस नाम का ऑब्जेक्ट है। ये सारी चीजें पहले प्री डिसाइडेड है, उसके बाद ये कोडिंग के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो जब हम पहले उसके डिजाइन कर देते हैं, दो फॉर्म में डिजाइन करते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा, एक स्ट्रक्चर डिजाइन होती है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन होती है। तो इन दोनों ही फॉर्म में हम इसको डिजाइन कर सकते हैं, आइदर इन प्रोसीजरल मैनर, आइदर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैनर। ये डिजाइनिंग मेथड्स है। नाउ नेक्स्ट, डिजाइनिंग से पहले की भी एक स्टेप थी, दैट इज एनालिसिस। अभी हम थोड़ा सा अपोजिट स्टेप चल रहे हैं क्योंकि हमें आदत डल गई है, जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम भी रन करते हैं तो हम कैसी अप्रोच फॉलो करते हैं, बॉटम टू अप अप्रोच फॉलो करते हैं। यानी कि पहले हम हमेशा टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करेंगे, जिसमें कि हम पहले कोड बना रहे हैं, उसके बाद में हम प्रोग्राम का मेन डिसाइड कर रहे हैं, बट कॉलिंग हमेशा बॉटम टू अप होती है। तो सिमिलरली हमने क्या किया है, पहले प्रोग्राम बनाया, फिर डिजाइन बनाया और उसके बाद हम एनालिसिस पे गए। अब एनालिसिस में क्या हो रहा है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मीन होता है इट्स अ गैदरिंग ऑफ द रेलिवेंट रिक्वायरमेंट्स। जो भी जरूरत की चीजें हैं उनको इकट्ठा करना है, जरूरत की जो भी मेथड्स हैं, प्रोसेस हैं, उनका कलेक्शन करना है, सो दैट कि आगे आपके प्रोग्रामिंग में अगर आपको कोई भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी इंटरप्ट्स क्रिएट होते हैं किसी मॉड्यूल को क्रिएट करने में, तो आप उस एनालिसिस वाले पार्ट को इजीली समझ पाएंगे और सो दैट वहां से आप अपने डिजाइन को भी चेंज कर सकते हैं, देन यू कैन चेंज योर प्रोग्रामिंग आल्सो। सो इट्स होल अ काइंड ऑफ डायनेमिक अप्रोच। ये पूरी एक डायनेमिक अप्रोच है जिसके थ्रू अगर आपने एनालिसिस में चेंज किया, देन यू विल चेंज योर डिजाइन, देन यू विल चेंज योर प्रोग्रामिंग। नाउ नेक्स्ट थिंग ये है कि ये तीनों चीजें रिलेट कैसे करती हैं। तो रिलेट कैसे करेगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायग्राम की अगर हम बात करें, सो इट्स यूजेस outcome of object oriented analysis as well as it uses object oriented programming that uses outcome of object oriented designing also. Now अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। इसका मतलब जब भी डिजाइनिंग होगी, उस डिजाइनिंग में हम एनालिसिस करेंगे, पहले एनालिसिस, उसके बाद हम क्या फोकस करने जा रहे हैं, डिजाइनिंग। So object oriented designing use the outcome of analysis and programming use the outcome of designing. तो सारी चीजें देखिए एक दूसरे से रेलिवेंट है। Now next we move with the reality and model. Reality and model क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर हम रियलिटी की बात करें, क्योंकि मॉडलिंग में हम वो काम करने जा रहे होते हैं जिसमें कि हम किसी रियल अप्रोच को, किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक रियल प्रॉब्लम लिया, उस रियल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए we have some real things here, some relevant environments, some relevant pupils, some processes that happening during some time, some relationship between the things. तो ये सब चीजें हमें पता लगाना बहुत जरूरी है कि रियल एनवायरनमेंट क्या है। उसके बाद में हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रियल एनवायरनमेंट, और इस मॉडल में हम देखते हैं कुछ एब्स्ट्रैक्शंस होता है चीजों को लेके, पीपल्स को लेके, प्रोसेस को लेकर, रिलेशनशिप को लेके। तो उस एब्स्ट्रैक्शन को हम एक मॉडल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी मूव विद द एलिमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स कि वो क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट मॉडल के। तो सबसे पहला बेसिक एलिमेंट है उसका एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये 4 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, मॉड्यूलरिटी एंड हायरार्की। एब्स्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, जब भी हम किसी डाटा को मेंटेन कर रहे हैं तो उसके मेन पार्ट्स पे काम कर रहे हैं, उसमें जो भी मेन रेलिवेंट डेटा है उस पर काम करते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। ना सेकंड हम बात करते हैं इनकैप्सुलेशन पे। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, डेटा को रैप अप करना। तो उस डाटा को हम रैप कर रहे हैं इनकैप्सुलेशन के फॉर्म में।
नेक्स्ट हम प्रोग्राम को डिवाइड कर रहे हैं मॉड्यूलरिटी के फॉर्म में। मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या है? मॉड्यूलरिटी इट मींस इट्स पार्टिसिपेट्स इन अ इंडिविजुअल फॉर्म विद द यूज ऑफ सम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो क्लास और ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में हमने अपने प्रोग्राम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है वो मॉड्यूलरिटी में आता है। देन इट्स लूजली कपल्ड मॉड्यूल्स। एक लूजली कपल्ड मॉड्यूल्स में हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि सारे मॉड्यूल्स एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको हम लूजली कपल्ड सिस्टम भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लास्ट इज हायरार्की अप्रोच, क्योंकि हम इसमें इनहेरिटेंस में यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर एक हायरार्की अप्रोच भी यूज होगी इन अ फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस। सो हायरार्की अप्रोच को हम यूज करेंगे जिसमें कि हम एक क्लास स्ट्रक्चर पे भी काम कर सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर पे भी काम कर सकते हैं। तो जो क्लास स्ट्रक्चर है वो अपने आप में एक हायरार्की है और जो ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर है वो हायरार्की का एक पार्ट है। तो इस दो तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं। सेकेंडली जो भी इनहेरिटेंस पे हम काम करते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ हायरार्की। नाउ नेक्स्ट वी मूव विद द वेरीफाई एंड वैलिडेट एन ऑब्जेक्ट मॉडल। एक ऑब्जेक्ट मॉडल को हम किस तरीके से वेरीफाई एंड वैलिडेट कर सकते हैं। तो क्या मतलब है वेरीफाई एंड वैलिडेट का? वेरीफाई का मतलब ये है कि इट्स अ काइंड ऑफ वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन क्या है? वेरिफिकेशन का मतलब ये जितना भी काम हम कर रहे हैं वो काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो एक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि वो सब वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक वेरिफिकेशन हो गया। सेकंड, वो वेरिफिकेशन प्रॉपरली वैलिड है या नहीं, वो प्रोसेस वैलिड है या नहीं, उसकी डिग्री को हम काउंट करते हैं मॉडल को, और वो मॉडल एक्यूरेटली वर्क करेगा या नहीं। अब ये एक्यूरेटली वर्क कहाँ करेगा? इट वर्क्स इन अ रियल एनवायरनमेंट। जितनी भी रियल प्रॉब्लम है उस पर ये मॉडल अप्रोप्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको चेक करते हैं हम वैलिडेशन में। सो वैलिडेशन में हम इसको चेक करेंगे। Now next we'll move with the next point. Next point पे हम move करते हैं which is we tell us that what is the need of object modeling. So object modeling की क्या need है उसको discuss करते हैं। तो एक बहुत बेसिक सी नीड है ऑब्जेक्ट मॉडलिंग की। ऑब्जेक्ट मॉडल जो होते हैं हमारे कई तरीके से काम करते हैं, जस्ट लाइक इट वर्क्स इन अवर नेचुरल सिस्टम्स जो नॉर्मल हमने प्रोग्राम बनाए हैं। Some human beings, just like some mathematicals, some scientific problems, it can be used in some artificial systems also, and it can be used some philosophical ideas that can be models. So any kinds of model जो भी कुछ predictions हम futures में follow करते हैं या जो past में या present में जो चल रहा है, उन सारी चीजों को हम एक प्रोग्राम के थ्रू, एक स्टेप्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। अगर हम बात करें मॉडल्स की तो इस पूरे टर्म्स को हम सिस्टम मॉडलिंग बोलते हैं क्योंकि हम पूरे सिस्टम पर ही काम कर रहे हैं। तो सिस्टम मॉडलिंग बेसिकली कितने टाइप की हो सकती है, कितने टाइप का सिस्टम हो सकता है? तो सिस्टम हमारा 3 टाइप्स का है बेसिकली। एक इन्वायरमेंट जो फंक्शनल इन्वायरमेंट है, जो हमेशा किसी फंक्शंस और बिहेवियर पर डिपेंड रहता है। इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियोज, जिसमें कि हम कुछ यूज केसेस मॉडल्स यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है स्ट्रक्चरल मॉडल। स्ट्रक्चरल मॉडल्स जो बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट और क्लास डायग्राम्स पर डिपेंड करते हैं। सो इट्स नोन एज स्ट्रक्चरल मॉडल, एंड इसके अंदर जो डायग्राम्स हम यूज करते हैं दैट इज अवर क्लास डायग्राम, इंस्टेंस डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम्स एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स। सो स्टूडेंट्स, ये जितने भी सारे डायग्राम्स हैं हम इसका डिस्कशन भी फर्दर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। जब हमारा यूज होगा इन डायग्राम्स को लेके, वहां पर हम इनका डिस्कशन करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज द डायनेमिक मॉडल। डायनेमिक मॉडल में हम यूज करते हैं कुछ सीक्वेंस डायग्राम्स को, स्टेट चार्ट डायग्राम्स को और एक्टिविटी डायग्राम्स को। तो आप ये देख रहे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के मॉडल्स हैं और हर मॉडल से रेलिवेंट एंड डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉडल्स की जो हमने डिस्कस की थी, और उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले जैसे ऑब्जेक्ट मॉडल है, तो ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करता है? This is the system that has classes with non-trivial states and many relationship between the classes. तो ऑब्जेक्ट मॉडल की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ क्लास की बात होती है और उससे रेलिवेंट रिलेशनशिप एंड ऑब्जेक्ट्स की बात होती है। नाउ एक मॉडल है डायनेमिक मॉडल। डायनेमिक मॉडल क्या कर रहा है? ये अपने इनपुट्स और आउटपुट्स के क्या क्या एक्सेप्शंस आ रहे हैं या क्या क्या एरर्स आ रही हैं उनको चेंज करने में हमारा हेल्प करता है। नाउ एक है फंक्शनल मॉडल। फंक्शनल मॉडल परफॉर्म करता है अभी क्या कंप्यूटेशनल क्या एक्टिविटी चल रही है,
क्या बिहेवियर चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली क्लास और ऑब्जेक्ट पर जो मॉडल डिपेंड करता है वो है हमारा ऑब्जेक्ट मॉडल। नाउ हम कितने तरीके से ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज कर सकते हैं? सो देयर आर 3 ways टू यूज दिस मॉडल्स. So first way is that model supports the 3 different types of activities. First is communication. कम्युनिकेशन जिसमें कि डेवलपर और एंड यूजर के बीच में क्या कम्युनिटी प्रोवाइड हो रही है, क्या मीडियम प्रोवाइड्स हो रहा है, वो देखा जाता है कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सेकंड, एनालिसिस एंड डिजाइनिंग के लिए इसका यूज होता है. सो डिजाइनिंग के लिए हम कुछ डिजाइनिंग टूल्स भी यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक सम केस टूल्स, कंपाइलर्स आल्सो. And it's also enable the developers to specify and reason about a future system. क्योंकि अगर हमने एनालिसिस और डिजाइनिंग कर लिया तो इससे हमारा जो फ्यूचर सिस्टम क्रिएट होने वाला है वो बहुत अप्रोप्रिएट और बेनिफिशियली क्रिएट होगा. क्योंकि जब भी हम किसी चीज पे एनालिसिस करते हैं, इट मीन्स हम उसके पास्ट और प्रेजेंट पर्सपेक्टिव को देखते हुए फ्यूचर में क्या होने वाला है उन सारी चीजों का भी ध्यान रखते हैं. तो एनालिसिस और डिजाइनिंग मेथड्स में हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे भी काम कर सकते हैं. द लास्ट वन इज आर्चिवल पॉइंट्स ऑफ व्यू. इसका मतलब जितने भी कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन है फॉर स्टोरिंग द डिजाइन एंड रेशनल ऑफ एन एग्जिस्टिंग सिस्टम. जैसे कि हम बात करें, टारगेट इज द ह्यूमन, जस्ट लाइक एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजर. तो इस टाइप के सिस्टम्स को भी हम इजीली मैनेज कर सकते हैं. जितने भी डॉक्यूमेंटेशन टास्क है हम उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं. ना ये जो मॉडल है इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे क्रिएट होते हैं ये ऑब्जेक्ट मॉडल? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच तो बहुत सारी फीचर्स को फॉलो करती है और वो जो अप्रोच है वो कई सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से होते हुए जाती है, कई सारे स्टेप से होते हुए फॉलो होती है. तो क्या कैसे किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करती है एक लैंग्वेज को या एक मॉडल को रिप्रेजेंट करना? तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग का मीन्स क्या है. So object oriented modeling means it's a kind of transformation of a single model throughout the software development activities. एक मॉडल है जो कि पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज को बता रहा है कि ये टास्क होने जा रहा है. तो उस पूरे मॉडल से, एक स्ट्रक्चर से हम ये पता लगा सकते हैं कि अभी हमारा प्रोग्राम या हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म होने जा रही है. तो एक तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है. इस ट्रांसफॉर्मेशन में कई सारी मेथड्स इंजीनियरिंग फॉलो होती है. तो सबसे पहली इंजीनियरिंग है फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि आगे के बारे में सोचती है. एक है रिवर्स इंजीनियरिंग, जो कुछ बैक फॉरवर्ड या रीयूजेबिलिटी पे काम करती है. एक है री इंजीनियरिंग, जो किए हुए टास्क को वापस से मॉडिफाई करती है. और एक होती है रीफैक्टरिंग, जो कोड को दोबारा से क्रिएट करके हम वापस से काम कर सकते हैं या पूरे प्रोजेक्ट को दोबारा से बना सकते हैं. तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास एक मॉडल स्पेस है, उसमें कुछ सिस्टम मॉडल है. आपको यहाँ पर एक यूएमएल दिख रहा होगा, दैट इज यूनिफाइड मार्कअप लैंग्वेज. तो ये जो मॉडल बनता है ये यूएमएल लैंग्वेज के थ्रू होता है. ये कनेक्टिविटी हुई है यूएमएल और अनदर सिस्टम मॉडल के बीच में. तो यहाँ पर एक मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. हमारे पास सिंपल एक लैंग्वेज है और उसने क्या किया, किसी दूसरे सिस्टम को लेकर एक मॉडल क्रिएट किया. नाउ सिंपली ये हमारा कोई दूसरा, मान लिया कोई दूसरा मॉडल है. तो कई सारे मॉडल्स को हम एक सिस्टम के अंदर क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पर एक वो सोर्स कोड स्पेस है जहाँ पर हमें उस मॉडल का रिप्रेजेंटेशन करना है कि भाई स्टार्ट हमने किससे किया था, एंड कहाँ करना है. तो मान लिया हमारा कोई प्रोग्राम है जावा में, तो हमने इस वाले मॉडल को अपने जावा के प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है और इसको हमने बोला फॉरवर्ड इंजीनियरिंग. यानी कि हमने कोई स्पेस बनाया, कोई डिजाइन बनाया और उसको कन्वर्ट कर दिया हमने अपने किसी प्रोग्राम में. यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं अपना प्रोग्रामिंग C++ आल्सो ना. अगर कुछ बैक प्रोसेस होनी है तो ये बैक भी मूव कर सकता है और हम इसको अनदर प्रोग्राम को भी कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ. तो जब हम उसी प्रोग्राम से कोई दूसरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम बोल रहे हैं रीफैक्टरिंग. ना हम बैक करके आए हैं और वहां पर हमारी हो रही है रिवर्स इंजीनियरिंग. तो ये सारी मेथड्स हमारी फॉलो हो रही है. देखिए हमने फॉरवर्ड इंजीनियरिंग की है, रीफैक्टरिंग भी की है, रिवर्स इंजीनियरिंग भी की है. एक टर्म बचा है हमारा री इंजीनियरिंग. री इंजीनियरिंग वो कॉन्सेप्ट होता है जहां पर हम सारी चीजों को रिपीट करते हैं, यानी बार बार किए हुए टास्क को जब हम रिपीट करते हैं. सो दीज ऑल टर्म्स आर इन री इंजीनियरिंग फॉर्म. हम एक मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन का एक एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से मॉडल ट्रांसफॉर्म होता है. मान लिया हमारे पास 3 क्लास है, एक टेक्निकल सपोर्ट है, टीचर और स्टूडेंट, 3 क्लासेस हैं और हर एक के पास अपने अपने कोई ईमेल एड्रेस है. तो यानी ये जो तीनों क्लासेस हैं, तीनों के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अलग अलग रखे हुए हैं.
हम चाहते हैं तीनों एट्रीब्यूट्स एक जगह आ जाएं डायग्राम के पास। तो जब हमारे पास मॉडल क्रिएट नहीं था तो उससे पहले का ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट मॉडल बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट मॉडल है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, ये जो तीनों क्लासेस थी इसको एक किसी कॉमन यूजर क्लास ने या किसी कॉमन सिस्टम ने यूज किया, उसको नाम दे दिया यूजर। और उसने क्या किया, आपके जो भी एट्रीब्यूट्स है उसको एक कॉमन एट्रीब्यूट्स का नाम दे दिया। तो यूजर ने कॉमन एट्रीब्यूट्स बना लिया ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर उसने आपकी तीनों क्लासेस का नाम दे दिया, जस्ट लाइक स्टूडेंट, टीचर एंड टेक्निकल। तो हमने क्या किया, जो डिफरेंट डिफरेंट तीन क्लासेस रखी हुई थी हमने तीनों का कॉम्बिनेशन करके एक ऑब्जेक्ट मॉडल बनाया। तो ये हमारा सिंपल ऑब्जेक्ट मॉडल का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से हम डिजाइन करते हैं चीजों को। एक टर्म्स और हम इसमें डिस्कस करेंगे, मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि चीजों को कोलैप्स करना, डिजाइन करना, जो भी हमको ऑप्टिमाइज करना है उसको डिजाइन करना। सो इट्स अ पार्ट ऑफ कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स डिलेइंग सम एक्सपेंसिव कंप्यूटेशंस। जितना भी टास्क हमको परफॉर्म करना है उस पर एक थॉट रखना। नाउ द नेक्स्ट इज फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का मतलब है हम आगे कुछ टास्क करना चाहते हैं, तो जब भी हम कुछ आगे टास्क करना चाहेंगे इट मीन्स वी डिसाइड सम अचीवमेंट्स, कुछ गोल हमारे डिसाइड होने चाहिए कि हमको क्या इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहला इसका टारगेट होता है गोल। सेकंड होता है मैपिंग इनहेरिटेंस, कितने नंबर ऑफ क्लासेस हमारे सिस्टम में यूज हो रही हैं उसको मैप करेगा। इट मैपिंग एसोसिएशन, एसोसिएशंस का मीन होता है जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा सारी चीजों को एक जगह जोड़ के रखा गया, दिस इज अ काइंड ऑफ एसोसिएशन, सारी क्लासेस को एक जगह जोड़ के रखना। नाउ इट मैपिंग सम कॉन्ट्रैक्ट्स टू एक्सेप्शंस, कुछ भी ऐसे एक्सेप्शंस आते हैं जिनको कि हमको सॉल्व करना है, कुछ एरर्स हैं उनको हैंडल करना है। इट मैपिंग ऑब्जेक्ट मॉडल टू टेबल्स, एक ऑब्जेक्ट मॉडल है जिसकी एक टेबल बना के क्रिएट करके रखना। ये सारे काम हमारे फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के हैं। ना कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट क्या है, इस ये एक एग्जांपल है कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट का। मान लिया मैंने एक एग्जांपल लिया पर्सन, पर्सन का मैंने एट्रीब्यूट्स दिया लाइक सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, और जिसमें कि उसने कोई नंबर लिया है स्ट्रिंग्स फॉर्म में। तो ये क्या है, उस ऑब्जेक्ट डिजाइन मॉडल का एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि किस तरीके से उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। नाउ आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों डिटेल को कोलैप्स कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, पर्सन एक क्लास है जिसका एक कोई नंबर ले लिया, एसएसएन नंबर ले लिया जो स्ट्रिंग्स फॉर्म में है। तो हमने क्या किया, जो पहले कनेक्टिविटी हो रही थी उसको एक हमने कोलैप्स फॉर्म में लिख दिया। ना इतनी सारी चीजें स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस की, एक छोटा सा उसमें अभी हम एक कंक्लूजन ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमने ये समझा है कि ऑब्जेक्ट मॉडल क्या क्या है। ना उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट एनालिसिस, डिजाइनिंग, इन कंसेप्ट्स को समझा है। उसके बाद हमने मॉडल्स के बारे में जाना है, फंक्शनल मॉडल है, डायनेमिक मॉडल है, ऑब्जेक्ट मॉडल है, इन सब के बारे में डिस्कस किया है ना। व्हाई वी नीड ऑब्जेक्ट मॉडल, ये सब भी समझा है हमने। उसके बाद मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, अगर हमारे पास कोई डेटा है तो उसको मॉडल के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो हम कोशिश करेंगे जितनी भी चीजें हमारे पास ऑन पेपर स्कैटर्ड फॉर्म में लिखी हुई है उसको हम एक जगह एक बॉक्स के अंदर रख देंगे, हम ऐसा मान के चलें। तो उस बॉक्स के फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन। तो वही हमने कई सारे डायग्राम के थ्रू प्रीवियस पीपीटीज में करके देखा है, आप उसको अच्छे से समझें और देखें। तो यही हमारे कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं जो कि हमको प्रोवाइड कराते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग एंड मॉडलिंग के बारे में। और इसी के साथ साथ ये अभी हमारा ऑब्जेक्ट मॉडल का एक पार्ट 1 है जिसमें हम ये समझ रहे हैं ऑब्जेक्ट मॉडल क्या क्या है और क्या कितने टाइप के ऑब्जेक्ट मॉडल होते हैं ना। इसी से रेलिवेंट हम एक पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, और वो पार्ट 2 हमारा ये बताएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट मॉडल है इसको हम कितने तरीके से काम कर सकते हैं। तो वो हम सारी चीजें पार्ट 2 में देखेंगे। तो अभी इससे रेलिवेंट हम एक जितनी भी पार्ट 2 में हम डाटा देखेंगे वो सारी डिजाइनिंग एक्टिविटीज और मॉडलिंग प्रोसेस से रिलेटेड होगा। कि अगर डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में पूरे डाटा मॉडल्स को लेते हुए। तो इसी का एक फर्दर पार्ट हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अच्छे से समझा होगा और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए, ध्यान से पढ़िए, सो दैट कि आप आगे के टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप कर पाए। थैंक यू सो मच।